My dear friend, I am Vijay Kumar Pal, a writer. These are my books. This is the paranoia of cults in Indian subcontinent. This book is not against any cult, but only to improve the correctness, the psychology of those people who are following the false aspect of science and are perishing their lives with confusion of real science and science of these aspects of book, which are described in the book in part A and B respectively. This book published on the Saswat Publication Bilaspur, Chhattisgarh. And this book is Zohar in Indian subcontinent. This book is the reflection of Islamic doctrine of Male Ganimat. And Wazbe Qatal means war captive Kafir women are the right hand possesses of Muslim soldiers and can be used as sex slaves, laundries, bandi, and can be sold after using them as open markets. And Wazbe Qatal. This also published on the Saswat Publication Bilaspur. Discriminated Hindus. Publication is the Saswat Publication Bilaspur. Venomous fangs of cobra, dangerous poison to the society. This book is the mirror of the cruelty of the followers of so-called cult or path and are going injustice, rather crime against women and humanity. That is Islam. This is Rudra published on the Rudra Publication Bilaspur. Lost Paradise Kashmir. This is also published on the Rudra Publication Bilaspur. This book is the reflection of the cruelty of Islam. When Hamadani, a Sufi saint, came to Kashmir, this was the black day and bad period to the Kashmir and Vedic culture and religion. Those Muslim leaders, as Farooq Abdullah, Mehbooba Mufti, parties are the bloodsuckers of the Hindus. Sorry. This is invaded and hidden fact by Vijay Kumar Pal. This also published in Rudra Publication Bilaspur. This book is a lament of the Sinjar, written the 8 books already, and this is the 10th book, and this book is the 4th book of this publication. I did my MSc Geology, and this book is the reflection of the Islamic Goonism in the name of the false Allah. This book is also related to how Hindus are suffer from the Congress party and many other party due to the cowardness of Hindus, or they are not organized in any way. And some the jihadis and the new Buddhists are the prime enemy of the Sanatan Vedic culture, and they are handshaking with the Islamic terrorist, as the Vyaman Misram is also handshaking with the Islamic terrorist. This is the blender of blasphemy, the how the non-Muslims are being perished or being persecuted by the Islamic goons throughout the Islamic countries. This book also is Astitva Publication Bilaspur, and you can purchase Amazon. This is the book of Black Dots of Terrorism by Vijay Kumar Pal, Rudra Publication of Bilaspur. So only the Islam is the terrorist group. So my dear friend, अब आपको थोड़ा हिंदी में बोलेंगे. ये किताबों का हमने तवारुक करा दिया, आपसे परिचय कराया, आपसे इंट्रोडक्शन कराया. अब हम जो आपको बता रहे हैं, जो हमारा मूल सब्जेक्ट है, जो हमारा थंबनेल है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं. तो हमारा जो थंबनेल है वो आज थंबनेल है, क्या इस्लाम में गुलामी मंजूर है या इस्लाम में औरतों की खरीद फरोख्त, औरतों की लूट जायज़ है. यस, इस्लाम में औरतों की खरीद फरोख्त, औरतों की लूट जायज़ है, और उन औरतों से उनको बाज़ारों बेचना, उनको जबरिया मुसलमान बनाना, और अगर वो मुसलमान नहीं बनती हैं तो जबरिया उनके साथ इंटरकोर्स यानी बलात्कार करना जायज़ है. और इस्लामिक विचार ऐसे ही रहे हैं. इन इस्लाम में किसी भी गैर मुस्लिम को इज्जत नहीं है. इस्लाम एक मूर्ख व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ एक मूर्ख आइडियोलॉजी है, जो कि इनका सो कॉल्ड पैगंबर मोहम्मद था, जिसके नाम पर ये सर तन जुदा के नारे लगाते हैं. अगर वो स्टूपिड नहीं था, अगर वो सही मायने में बुद्धिमान था और वो एक अच्छा आदमी था, तो वो लड़कियों की खरीद फरोख्त क्यों करता था? मौलाना कहते हैं कि अरब में पहले भी लड़कियों की खरीद फरोख्त होती थी. अरे भाई, ये तो फिर पैगंबर था, पैगंबर को तो कुछ अच्छे काम करने चाहिए थे. और वस्तुस्थिति ये है कि कुरान में जो आयत लिख दी मोहम्मद ने, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है. जो इस्लाम के नाम पर जो झूठ फैलाया मोहम्मद ने और कह दिया ये कुरान में बदला नहीं जा सकता, तो कुरान की वो आयतें भी नहीं बदली जा सकती, जिसमें साफ साफ कहा गया है
कि गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचा जा सकता है, और लूट का माल अल्लाह की तरफ से लूटा हुआ माल है। यहाँ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, रिमाइंड इन योर माइंड दैट देयर इज़ नो अल्लाह एट ऑल। अल्लाह इज़ द फैलेसी एंड द अल्लाह इज़ द क्रिएशन ऑफ द सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद ऑफ इस्लाम। दिस इज़ द प्रॉफिट ओनली द मुस्लिम्स। हमारे लिए तो वो ऐसा व्यक्ति है जो काफिरों का कातिल था, लुटेरा था, बलात्कारी था, जो पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा। अब हम आते हैं इनकी कुरान की आयत क्या क्या कहती है। देखिए, कुरान का सूरा अल बकरा की 2 की आयत 178 कहती है, कुरान में ईमान वालों को मारे गए लोगों के बारे में किसास अनिवार्य है। यानी कि औरत के बदले औरत, गुलाम स्त्री के बदले। अब बात गुलामी पे, किसास का मतलब कानून, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मोहम्मद आखिर में गुलाम बनाता ही कौन था? वो तो उसको तो आदर्श स्थापित करना चाहिए था, सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम दैट ही मस्ट बी ए गुड पर्सन, बट ही वाज ए किलर, द रेपिस्ट and the robber, certified robber, and the agent of the woman or the agent of the market of the woman। वो तो चकला घर चला दिया, पूरे इस्लाम को चकला घर बना दिया उसने। वो व्यक्ति तो औरतों की दलाली करता था, औरतों को बाजारों में बेचता और खरीदता था। अब ये देखिए, एक इनकी आयत है 5:32 आयत है, किसी ईमानदारों का ये काम नहीं है किसी ईमानदार वाले की हत्या करे। भूल चुक की बात और है। अब ये 5:32 की आयत को इसी को ही मौलाना बताते रहते हैं। देखो, अलमाइदा की 5:32 कहती है किसी ईमान वाले काम नहीं कि किसी ईमान वाले की हत्या करे, और अगर वो हत्या करता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन 5:33 क्या कहती है उससे अगली आयत, अलमाइदा की चैप्टर 5 की, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दो। तो दोस्तों, ये है मोहम्मद का सिरफिरी आइडियोलॉजी, जिसको हम सब इस्लाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद एक सिरफिरा व्यक्ति था, और सिरफिरा व्यक्ति ही इस तरह की आइडियोलॉजी को ला सकता है जिसमें औरतों को लूटने और खसोटने की बात हो। तो ये कहते हैं कि मोहम्मद ने गुलाम भी आज़ाद कराए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद ने कब गुलाम आज़ाद कराए? एक औरत को आपने 18 साल की उम्र में उसको किडनैप कर लिया, उसका मोलेस्टेशन किया आपने, उसके साथ रेप किया, और 40-50 साल की उम्र में उसको छोड़ दिया तुमने। उसमें भी उस पर काम कराया और काम के बदले पैसा लिया। जब उस गुलाम ने वो पैसा अदा कर दिया जब तुमने छोड़ा, और मोहम्मद तो बहुत सारे गुलाम रखता था। अब आगे पढ़ते हैं जी। इस्लाम में स्पष्ट रूप से ये हदीस में क्या लिखा है, ये हदीस पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ुल्ला अन्ना का वर्णन है। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला जो कि मोहम्मद का रिश्तेदार था, जो उमर का बिन उमर जो उमर का लड़का था, और उमर मोहम्मद का साला था, ससुर था। तो आप ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दास जब अपने मालिक का शुभचिंतक रहे और अच्छी तरह अल्लाह की इबादत करे, उसे दोगुना प्रतिकार मिलेगा। अब ये दास, या खुद ही मोहम्मद ने सर्टिफाइड कर दिया कि दास प्रथा या गुलामी जो है गलत काम नहीं है। फिर ये मौलाना झूठे मौलाना ये बोलते हैं कि वो मोहम्मद ने गुलाम भी आज़ाद की। अरे भाई, तुम्हारे इस्लाम में गुलामी प्रथा ही क्यों है? तुम्हारा तो इस्लाम पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ही क्यों करते हो तुम लोग? यानी कि इस्लाम एक झूठ का पिटारा। मौलाना कोई जवाब नहीं दे सकते, उनकी औकात नहीं, क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है इंसानियत के खिलाफ। गए वो नारे सर तन से जुदा लगाने वालों, अब सर तन से किसके जुदा होंगे? वो दिन याद करो कि जब गैर मुस्लिम अपने हाथों में हथियार ले लेंगे, तुम्हारी इस्लामी गुंडागर्दी का अंत हो जाएगा। तुम्हारा अल्लाह कुछ भी नहीं कर सकता, ना कोई अल्लाह है, और कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को पढ़ता है वो अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कुरान कहती है, तुम्हारी कुरान मुसलमानों को बुरा बनाती है। वो कहती है किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखो। फिर आप क्यों दोस्ती रखते हो हिंदू, यहूदी, ईसाइयों से? यानी कि मोहम्मद ने तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट वाली कहावत समझ में आ जाती है। तुम मुसलमान गैर मुस्लिमों से दोस्ती के लिए तुम्हारी कुरान मना करती है। उनको तो कत्ल करने की बात कहती है। जब तुम उनको कत्ल करोगे
तो तुमको भी कत्ल किया जाएगा, तुमको भी मारा जाएगा। तो इजराइल क्या बुरा कर रहा है? अल्लाह के बंदों को इसी तरह जवाब देना है। हर गैर मुस्लिम को अब इस इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और ये कोई उकसावा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुरान उकसाने की बात कह रही है तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और सबक पूरी दुनिया को मिलकर इस इस्लामिक गुंडों को, इस्लामिक कंट्रियों को सबक सिखाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कोई सेना भी बनाई जाए। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद का करैक्टर, जो लड़कियां बेचता था, लड़कियां खरीदता था, गुलाम खरीदता था, गुलाम बेचता था। सवाल इस बात का है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डंडा चढ़ा सऊदी अरब पर, जो इस्लामिक गुंडागर्दी का प्रतीक है सऊदी अरबिया, क्योंकि जहाँ पर ये पैगंबर पैदा हुआ था और जो पैगंबर की विचारधारा को मानता है वो सऊदी अरबिया इस्लामिक गुंडागर्दी का प्रतीक है। ये अच्छी बात है कि अब मोहम्मद बिन सलमान जो राजकुमार है वो इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक दिन वो विजयी होंगे और मक्का से अल्लाह और मोहम्मद का नाम मिट जाएगा। वैसे भी अल्लाह तो कोई है ही नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि दीज मुस्लिम्स, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड that these Muslims are following the path of so-called Prophet Muhammad, who were the rapist, killer and the robber, the certified robber according to the Quranic books। तो ये गुलामों को मोहम्मद खरीदता था, और कुरान की आयत है कि जब आप युद्ध में स्त्रियों को जीत लो, जो गैर मुस्लिम स्त्रियां हैं उनको मलिकाए अमीन बना सकते हो, रखेल बना सकते हो, और उनको बाजारों में बेच सकते हो। तो जैसे इस्लाम का पैगंबर एक वैश्यावर्ती के दलाल के माफिक काम करने वाला आदमी पैगंबर है, ये सोचने और समझने की बात है। जो ये कहते हैं कि गुलामी प्रथा ख़त्म हो गई थी, ओ भाई कहीं भी गुलामी प्रथा ख़त्म नहीं। कुरान में आज तक वो आयत मौजूद है जिसमें ये लिखा है कि आप अपनी मामा की बेटी, फूफी की बेटी, फलाने की बेटी, ढिकाने की बेटी में शादी करो, और शादी के बाद उनके साथ, निकाह के बाद उनके साथ मुबाशरत यानी कि इंटरकोर्स करो या यौन संबंध बनाओ। लेकिन गुलाम स्त्री के लिए ऐसा नहीं है। वो तो मुसलमान का हक है, अगर वो औरत आपने लूट ली, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू औरत को लूट लिया, भले ही वो शादीशुदा है, उसकी शादी अपने आप टूट जाएगी। अब वो हिंदू आदमी उसका पति नहीं है, क्योंकि वो औरत मुसलमान इस्लामिक गुंडों के हाथ में चली गई है। यहाँ जिनको आज मुसलमान कहते हैं, जो सच्चा मुसलमान है ओसामा बिन लादेन है, तालिबानी है, जो सच्चे इस्लाम पर चलते हैं, उन इस्लामिक गुंडों की बात कर रहा हूँ। हमारा भारत का तो मुसलमान इस्लाम पर चलता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस्लाम पर चलेगा तो उसे मोहम्मद की शिक्षा का पालन करना पड़ेगा, जो कि गुंडागर्दी से, खून खराबे से, बलात्कार से भरी पड़ी है। किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है अल्लाह के नाम पर कि हिंदुस्तान में इन कानूनों का उल्लंघन करे। नहीं, भारत का कानून अल्लाह और मोहम्मद दोनों की सुन्नत को, सुन्नत की तशरीफ पर डंडे बरसा कर लाल कर देगा। और ये हम उदाहरण जो कहते हैं हम अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। अबे मूर्खो, दिमाग के पैंदो, बकरी की औलाद हो, तुम अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह है कहाँ? पहले वो तो बताओ। अल्लाह ही नहीं है तो डरना किस बात का? अगर अल्लाह भी होता तो कम से कम इस तरह की हरकत नहीं करता और दुनिया बनाने वाला और नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह था, जिसने मोहम्मद के बलात्कार और लूट बलात्कार कत्लों को भी सही ठहरा दिया। और 5वां हिस्सा वो झूठा अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया था, मोहम्मद को 5वां हिस्सा लूट का मिलता था। तो मोहम्मद ने कितने ही लोगों को गुलाम बनाए, कितनी औरतों की इज्जत ख्वार की। और उसके बाद मोहम्मद के मानने वाले, जो सुन्नत के मानने वाले, ये तालिबानी गुंडे जो आज अफ़गानिस्तान में राज कर रहे हैं, ये इस्लामिक गुंडे, ओसामा बिन लादेन जैसे गुंडे, अरशद मदनी जैसे गुंडे, और महमूद मदनी जैसे गुंडे, इमाम बुखारी जैसे गुंडे, जो कि इस्लाम पर चलते हैं, वास्तव में ये गुंडे हैं कि शिक्षा ही देते हैं, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा गुंडागर्दी है। इन गुंडों से भी निपटने का वक्त आ गया है। उठो देश के नौजवानों, उठो पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिमों और इस्लामिक गुंडागर्दी का अंत करने के लिए अपने अपने हाथों में तलवार थाम लोगे। जिस दिन तलवार थामोगे, ये अल्लाह के बंदे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। तालिबानियों को जो भारत सरकार ने, तालिबानी गुंडे आमिर खान मुत्तकी को जो अपने यहाँ इनवाइट किया, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। नेता इसी तरह की मूर्खताएं किया करते हैं।
हमें इस बात की तवक्को नहीं है कि नेता क्या कर रहे हैं। हमें गैर मुस्लिमों को इस्लामिक गुंडागर्दी, माले गनीमत या जो लूट करते हैं, जो कत्लोगार जो इस्लाम की आयतों में है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, जहाँ पाओ 9 की 5, 5 की 33, 174 बारी आया है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। इन इस्लामिक गुंडों को जो नकली अल्लाह के नाम पर गैर मुस्लिमों का खून माने पर उतारू हैं, इनसे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि गैर मुस्लिम विजयी होंगे, क्योंकि गैर मुस्लिमों के पास दिमाग है, हथियार है, पैसा है, सबसे बड़ी बात उनके पास लॉजिक है। और इसी लॉजिक को सुनकर हमारे मुसलमान भाई भी आज इस्लाम को छोड़ रहे हैं। हमको मुसलमानों से कोई ना गुरेज है, ना कोई परहेज है, ना कोई उनसे वितर्षणा है, ना कोई उनसे ईर्ष्या है। हमको तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि वो ऐसे आदमी को अपना पैगंबर मान बैठे हैं जो एक हत्यारा, लुटेरा, औरतों को बेचने और खरीदने वाला था, जिसे बनु करेजा यहूदी औरतों को लूटकर बाजारों में बेच दिया, जिसने सफिया बिन्त हैया के पिता और पति दोनों का कत्ल किया और 3 रात ये उसके साथ रंगरेलियां मनाता रहा। इसलिए महाराष्ट्र राज्यपाल ने जो रंगीला रसूल है उस पर आज तक प्रतिबंध है। ये है कायर गवर्नमेंट जो हिंदुओं की रक्षा की बात कहती है। बीजेपी के आरएसएस के लोग सबसे बड़े कायर हैं, क्योंकि इसमें जो लोग जाते हैं बड़े डरपोक हैं, ना तलवार चला सकते हैं। वो दिन रात दुकानों पर बैठकर बेईमानी करने वाले लोग, लुच्चे और लफंगे लोग हैं। वो लोग सिर्फ हिंदुओं को भड़काते हैं और उन जातियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं लड़ने के लिए। जो जातियां मार्शल जातियां हैं, जाट, गुजर, राजपूत, गडरिये, कुर्मी, लोधी, खटीक, जाटो भाई और बहुत सारे धोबी, रजक समाज, कंडेरे, बहुत सारी जातियां हैं जिनका नाम सोनी, जो लोग महान हैं उनको ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। आरएसएस के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर चूतियाँ बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनकी चालों में नहीं फंसना। आरएसएस तो हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है। आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। यार उस मुसलमानों को आप भारत की मेन स्ट्रीम में मिलाना चाहते हैं, जिनका इस्लाम कहता है कि हमें गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं करनी। क्या आरएसएस ये मानता है कि हिंदू गैर मुस्लिम नहीं है? यानी आरएसएस के मूर्खों की बातों में आकर हिंदू अपने को बर्बाद कर रहा है। आरएसएस की शाखाओं में जाना छोड़ो, आरएसएस की शाखाओं का विरोध करो। हर जगह ये पार्कों में, हर जगह सरकारी संपत्ति पर जो आरएसएस की शाखा हैं, इनको बंद करने का अब समय आ गया है, क्योंकि हमें चेतना जगानी है। सनातन वैदिक धर्म का मूल आधार वेद है, आरएसएस नहीं। आरएसएस क्या कुछ कर सकती है? इस्लाम की जो पुल है और जो पर्त खोल रहे हैं एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक जैसे लोग खोल रहे हैं, जफर हेरेटिक जैसे लोग खोल रहे हैं। और हम इस मोबाइल पर आकर इतनी बकवास इसलिए कर रहा हूँ कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, जो आप करते नहीं हो। तो दोस्तों, ये था मोहम्मद। ये अब एक और हदीस है इनकी, जब ये वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दास अपने मालिक का शुभचिंतक रहे, अच्छी तरह अल्लाह की बात, ये तुम्हें पता। और एक और है, ये कहते थे कि मोहम्मद ने गुलाम आज़ाद किए। मोहम्मद के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैंने एक गुलाम औरत को आज़ाद कर दिया है। मोहम्मद ने कहा तुमने गलत किया, उसका अभी पूरी तरह से शरीर शोषण नहीं हुआ था, तुमको अपने मामा को सौंप देना था। यह है इस्लाम की मॉरल और नैतिकता। भांजा भी वही और मामा भी वही कर रहा है। यानी कि बेशर्मी की, जो बेहूदगी और बेशर्मी और गंवारियत की, जहलियत की सीमा पार करता हुआ इस्लाम। अब इस्लाम को मानने वाले क्या होंगे? ये तौकीर रजा कहता है तो मैं तो अल्लाह की सिवा किसी से नहीं डरता। अब वहाँ फटी पड़ी है अस्पताल में, दिन रात गिन रहा, और ये भी कहता है कि असुद्दीन ओवैसी कि हम अल्लाह की सिवा डर ले। अबे मूर्ख, अबे बेपैंदी के बैंगन, भुने हुए भुर्ते की औलाद, पहले तू ये साबित तो कर कोई अल्लाह है, और फिर अगर कोई अल्लाह है तो ऐसा गुंडा, बदमाश, लुच्चा, लफंगा अल्लाह जो मुसलमानों को कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूट कर बाजारों में बेच दो, और जो हिस्सा है 5वां हिस्सा पैगंबर को दे दो। तो इस तरह के बैंगन के भुर्ते, जामुन के बीज, अकल के टट्टू, अकल का टट्टू मतलब छोटी अकल वाले, पहले अल्लाह को प्रूव तो कर भाई। हम अल्लाह के सिवा किसी नहीं डरते, अल्लाह है ही नहीं तो किससे डरते हो भाई तुम? जो चीज़ नहीं है उससे डरने का कोई सवाल ही नहीं होता। आप सही बोलते हो कि अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं, तो फिर डरोगे किससे? अल्लाह तो नकली अल्लाह, अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह है। अब ये देखिए, मोहम्मद ने
औरतों को भी लिया, गोद में लिया, मतलब उसने गोद में नहीं, औरतों को लिया, उसमें गिफ्ट में लिया, वारी में मारी अलकीबतिया नाम की एक ईसाई औरत को गिफ्ट में लिया इसने। तो दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन का जो डंडा पड़ा है इस्लाम के, अल्लाह की औकात नहीं। सऊदी अरब को भी, जो इस्लामिक गुंडों का सरदार है, क्योंकि इस्लाम तो वहीं से चला ना, सऊदी अरब से। होंगे मोदी जी के संबंध मोहम्मद बिन सलमान से, हमें कोई राजनेताओं से लेना देना नहीं है। जिस तरह इस्लाम कोई राजनीतिक सीमा नहीं मानता, ये हमारा मानवतावाद, जिसमें सारे गैर मुस्लिम मानवतावादी एथीस्ट जो किसी भी भगवान को नहीं मानते, एग्नोस्टिक जो ये मानते हैं कोई ताकत है दुनिया चला रही है कोई, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, वो सारे लोग भी कोई सीमा नहीं मानेंगे, और हम सीमा मानने की आवश्यकता नहीं। ये पार्टियां हमें बताने वाली कौन होती हैं? हम तो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी भी इस्लामिक गुंडागर्दी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा कानून जाए भाड़ में, तुम्हारा संविधान जाए भाड़ में, अगर वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता या किसी एक तरफ झुका हुआ है, जिस तरह SC एक्ट जो भले के लिए बनाया गया था, आज के इसका मिसयूज कर रहे हैं। और मज़े की बात है, जो नवबोध हैं, जो इस्लाम, जो हिंदू है ही नहीं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो क्यों, वो कहाँ से दलित हैं? और वो अगर उनके खिलाफ कोई एट्रोसिटी करता तो कहाँ से दलित एक्ट लग जाएगा, SC एक्ट लग जाएगा। यही वजह है, जब डॉक्टर कुमार ने जूता फेंका PR गवई पर, वो बुद्धिस्ट है, तो दलित किधर से है? वो कोई एक्ट नहीं लगा। और दोस्तों ये याद रखना, अगर बुद्धिस्ट है आपका झगड़ा होता है और वो आप पर दलित एक्ट, SC ST एक्ट लगाता है, तो उस कानून को फाड़ डालो। ऐसे संविधान को फाड़ने की आवश्यकता है जो हमारे अधिकारों का हनन करता है। हमें नहीं चाहिए ऐसा संविधान। संविधान को बदलना होगा, SC ST कानून को ख़त्म करना होगा, वरना इस देश में जो क्रांति आएगी, और जो लोग कहते हैं कि हम 1585 का कोई खेल नहीं है, OBC हमेशा जनरल कैटेगरी का साथ दो, क्योंकि OBC को 27% रिजर्वेशन मिला है, उनकी आबादी से बहुत कम। जनरल कैटेगरी की आबादी 18%, उनको सिर्फ 10% मिला है, उनकी आबादी से कम, और हमको तो 52 के बजाय आधा ही रिजर्वेशन मिला है। तो हम इनके पास क्यों जाएं? और दलित हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? 52% आबादी का नेता एक दलित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, और ना हम उनको मानेंगे, क्योंकि ये दलितों में से ही बहुत सारे संगठन, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग उन इस्लामिक गुंडों से हाथ मिला बैठे हैं और दलित मीम और भीम का समीकरण बना रहे हैं, जो कि स्वीकार्य इसलिए नहीं है कि दलितों की भी इस्लाम में वही हैसियत है जो गैर दलित हिंदुओं की है या सारे गैर मुस्लिमों की है। इस्लाम के अनुसार चंद्रशेखर रावण भी नरक की आग में जलेगा, जहन्नुमी है ये, दोजख की आग में जलेगा। इसके भी चैन, पिछले रास्ते से चैन निकाली जाएगी, लोहे की चैन पोटी के रास्ते से मुंह में निकाल दी जाएगी, चैन में बांधकर इसको भी जहन्नुम की आग में फेंका जाएगा। मुसलमान ये बात अच्छी तरह जानता है, लेकिन हमारे दलित भाइयों को चंद्रशेखर और मायावती से ऐसे लोग भरमा रहे हैं, भाई इस्लाम में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप डालिए मुकदमा, मैं सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा कि इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को इज्जत नहीं है। और मज़े की बात है, ये जो इस्लाम है चलाई हुआ है दूसरी औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने, दूसरे गैर मुस्लिमों को लोगों को कत्ल करने, उनकी औरतों को बाज़ारों में बेचने के लिए। तो इनकी किताबों में लिखा है, ये तो इनकी कुरान में लिखा है, ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो है किस तरह गुलामी इस्लामिक विचारधारा ने पूरी दुनिया को चकलागर बना दिया, एक वैश्यालय में तब्दील किया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।